Good morning, students. Welcome to our e-learning class. Dear students, what is the image here? Who is this? What is the picture of? Yes? Anyone else? Yes, this is the image of Nelson Mandela. Who is Nelson Mandela? Nelson Mandela was the first black president of South Africa. Do you know South Africa? South Africa is also one of the big countries in South African continent, and Delhi is the capital of India. Similarly, Pretoria is the capital city of South Africa. See, that red colored dot is shown to show Pretoria, that is the capital city of South Africa, and below it Johannesburg is also there. It is also the famous city of South Africa. So today we will learn, dear children, how that South Africa was freed from the injustices of Great Britain, as our India was also a slave country of Great Britain. You know it very well, isn't it? Similarly, Africa was also freed from the Britishers. Okay, now how that South Africa was freed from the British people, isn't it? So that we will go to learn South African country. 1 minute. Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. This lesson is from the first flight, class 10th. See here that important of 10th May, bright and clear, marked as the day of freedom against racial supremacy. Dignitaries across the world has visited South Africa. So that 10th May, a day which was dawned or arisen, it was bright and clear day, and that day was marked as the day of freedom against racial supremacy. Racial supremacy का मतलब क्या है? जो वंशिक भेद होता है, काला गोरा, मंगोलियन, निग्रो, ये ऐसे जो वंशिक भेद है, उसकी जो श्रेष्ठता रहती है एक क्लास की, that is called racial supremacy. And this day 10th May was shown symbolized as the day of freedom for South African people. And so dignitaries across the world has visited South Africa. So many great leaders from all over the world were invited for this ceremony or big program. So what was the program? Conducted at lovely sandstone amphitheater of Pretoria. Amphitheater का मतलब क्या है? That round unroofed stadium, that is called amphitheater. As you watch cricket stadium, isn't it? So other sports and games stadiums are also made amphitheater. So amphitheater is unroofed round shaped stadium. And so
This program of swearing in was conducted at lovely sandstone amphitheater of Pretoria. तो ये प्रिटोरिया का जो कैपिटल सिटी है वहाँ ये प्रेसिडेंट बनाने का जो प्रोग्राम था, या तो जो साउथ अफ्रीका का जो गवर्नमेंट फॉर्म करने का लीगली प्रोग्राम था, दैट प्रोग्राम वाज हेल्ड इन द कैपिटल सिटी ऑफ प्रिटोरिया इन साउथ अफ्रीका. कंडक्ट मतलब रखना. रेनबो गैदरिंग, रेनबो गैदरिंग मतलब रेनबो मीन्स इंद्रधनुष. So rainbow gathering is, that is metaphor, that is example to express the idea. The idea is that different leaders from different countries, that means rainbow gathering, leaders across the world has gathered to confer glory and freedom to newly born Republic of South Africa. कन्फर का मतलब है देना, CONFER. कन्फर का मतलब है देना, isn't it? Confer means देना. So glory, glory means greatness. Republic means democratic country, that is called republic. So rainbow gathering, it means leaders from different countries had gathered there to give the glory or freedom to the newly born republic country South Africa. Further, further means अधिक. It was the first time on South African soil. तो साउथ अफ्रीका के कंट्री में ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा था कि साउथ अफ्रीका अभी आज़ाद हो गया और उन्होंने खुद का अपना एक रिपब्लिक कंट्री स्थापित किया है. स्लेवरी से, गुलामगिरी से अब वो मुक्त हो गए हैं. मंडेला वॉज अकम्पनाइड बाय हिज डॉटर ज़ेनानी. मंडेला की जो लड़की थी ज़ेनानी, शी वॉज ऑल्सो अकम्पनाइड. अकम्पनाई का मतलब साथ में रहना. सो मंडेला की जो उनकी डॉटर है, लड़की है, वो ज़ेनानी भी अपने पिताजी के साथ में ये प्रोग्राम में मौजूद थी. एंड नेल्सन मंडेला, यू नो डियर चिल्ड्रन, he was in jail for 30 years to struggle against slavery to get freedom for South Africa. 30 साल वो जेल में रहे थे नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका का आज़ादी पाने के लिए. नाउ स्वेरिंग सेरेमनी. स्वेरिंग का मतलब क्या है? टेकिंग ओथ. जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनते हैं ना, वो शपथ लेते हैं, उसका जो कार्यक्रम रहता है उसको स्वेरिंग सेरेमनी बोलते हैं. तो लाइक दिस, मिस्टर डी क्लार्क सेकंड डेप्यूटी, थैबो एम्बेकी एज फर्स्ट डेप्यूटी and Nelson Mandela as the president. So on that day of a swearing in ceremony, Mr. De Klerk was the second deputy president, Thabo Mbeki was the first deputy president of South Africa, and Nelson Mandela became the first black president of South African country, and that was the program. And you know, to witness this program, so many world leaders had gathered there. Now in that program, Nelson Mandela delivered his speech. So what was in that speech? So main points are given here. Apartheid. What is apartheid? Apartheid का मतलब क्या है? Racial discrimination policy created a deep wounds. Racial discrimination मतलब racial यानी वंशिक, जैसे कि आप काले हैं, हम गोरे हैं, आप मंगोलियन वंश के हैं,
है ना, आपका नोज फ्लैट है, आपका कलर वैसा है, आप दिखने में ऐसे है, आप ऐसे धर्म के हैं, आप ऐसे जाति के हैं। तो ऐसे अलग अलग कम्युनिटी जो डिफरेंसेस रहते हैं, जो सामाजिक भेद रहता है, अलग अलग वर्ण या जात पात आर्थिक स्थिति के आधार पे, सो दैट इज कॉल्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली ये जो बर्थ रहता है, खानदान, तो वो बर्थ के हिसाब से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बनाया जाता है। गोरा काला मंगोलियन निग्रो ऐसे, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है डिफरेंस, भेदभाव। पॉलिसी क्रिएटेड अ डीप वुंड्स। तो समझो कोई क्लास हमें खुद को रीच समझ रहा है, हाई समझ रहा है, और सामने वाले को हमें निचला समझ रहा है, तो आपको कैसे लगेगा? सो दे आर द वुंड्स। वुंड्स यानी एक मानसिक घाव है। तो इस तरह से इसको हम अपार्थिड बोलते हैं। जो काला गोरा निग्रो मंगोलियन ऐसे जो कुछ भेदभाव है वंशिक, बर्थ को लेकर, खानदान को लेकर, जन्म को लेकर, इसको अपार्थिड बोलते हैं। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लिश लोगों ने ब्लैक एंड वाइट ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया था। ब्लैक्स वेर डिप्राइव्ड फ्रॉम बेसिक राइट्स। बेसिक राइट्स यानी जो हमारे मूलभूत अधिकार होते हैं, आज़ादी, भाषण, विचार व्यक्त करना, फ्रीली घूमना, तो इसको एक बैन था, प्रतिबंध था। डिप्राइव का मतलब छीन लेना, डिप्राइव का मतलब है छीन लेना। ब्लैक्स वेर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक राइट्स एंड सफर्ड इनह्यूमेनली। इनह्यूमेनली का मतलब है अमानवीय। तो हमारे जो मूलभूत अधिकार होते हैं, आज़ादी, अपने शिक्षा का अधिकार, विचार व्यक्त करने का अधिकार, मानवता से रहने का अधिकार, ये सभी अधिकार ये ब्रिटिश लोगों ने, वाइट लोगों ने हमसे छीन लिए थे। वी वर नॉट फ्रीड इन दिस रिगार्ड। हार्शेस्ट एंड द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है लूट, लूटना, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। हार्शेस्ट का मतलब क्या है? हार्श यानी कठोर, हार्शर यानी अधिक कठोर, द हार्शेस्ट यानी सबसे ज्यादा कठोर। इजंट इट? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण की वो 3 डिग्रीज रहती है ना, उसमें का द हार्शेस्ट यानी सबसे ज्यादा कठोर। तो सबसे ज्यादा कठोर और बहुत ही अमानवीय ऐसा हमारा जो लूट हो रहा था, मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक जो छल चल रहा था, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन, वो वाइट पीपल कर रहे थे। एंड रेयर प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब जो स्पेशल राइट्स होते हैं, जो हमारे खास अधिकार होते हैं, जैसे हमारे सैनिटाइजेशन, सैनिटरी, है ना, हमारी दूसरी सेकेंडरी नीड्स क्या है, हमारा सुरक्षित लाइफ, बाद में आरोग्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, ये सब कुछ जो हमारे स्पेशल अधिकार है, उनको भी हम डिप्राइव थे। सिर्फ शिक्षण लेना या शिक्षा पाना ये वाइट लोगों का ही काम है। काले लोगों ने, मतलब जो उन्होंने नाम दिया था, जो गुलाम हमें नाम दिया था स्लेव, वो क्या करेंगे? हमारी गुलामगिरी करेंगे। दे विल बी ट्रीटेड बाय अस। हम जैसे उनको ट्रीट करेंगे वैसे उनको रहना है। फर्स्ट टाइम एवर इन साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री टू हैव रेनबो गैदरिंग ऑफ डिग्निटरीज। डिग्निटरी यानी जो हाई रैंक के ऑफिसर्स या तो बड़े लोग रहते हैं प्रेस्टिजियस, उनको डिग्निटरीज बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम एवर इन साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री टू हैव रेनबो गैदरिंग ऑफ डिग्निटरीज टू कन्फर ग्लोरी ऑन न्यूली रिबॉर्न रिपब्लिक। कन्फर यानी देना। साउथ अफ्रीका के कंट्री को रिपब्लिक यानी कि प्रजासत्ताक, डेमोक्रेटिक, जैसे भारत में एक सबसे बड़ी लोकशाही है, वैसे साउथ अफ्रीका भी एक सेकंड बहुत ही लार्जर डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो उसको पहली बार एक उनकी महानता, ग्लोरी यानी वैभव, महानता, कीर्ति, और उनको प्रजासत्ताक कंट्री करके डिक्लेयर करना, उसके साक्ष्य में विटनेस करके
बहुत सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स वहाँ अलग अलग कंट्री से आए थे, इसीलिए उसको रेनबो गैदरिंग बोला है। जैसे 7 कलर्स रहते हैं रेनबो में, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लीडर्स को एक रूपक मेटाफर जो रहता है अलंकार, उस रूप में रेनबो गैदरिंग ये टर्मिनोलॉजी शब्द यूज किया है। पीपल हैव अचीव्ड फ्रीडम, नाउ साउथ अफ्रीकन पीपल हैव गॉट देयर ओन फ्रीडम। लिबर्टी, लिबर्टी यानी फ्रीडम, आज़ादी, पहली बार उन्होंने आज़ादी पाया था। कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और कॉमन विक्ट्री यानी जब कोई भी चीज़ सभी को एक साथ बहाल की जाती है उसको कॉमन विक्ट्री। तो उनका एक सभी का कॉमन, सभी पब्लिक का एक जीत हुआ था। किसके लिए? जस्टिस, जस्टिस यानी न्याय, पीस, पीस यानी शांति, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और जो मानवीय अधिकार होते हैं, जो हर एक मानव को एक रिस्पेक्ट, प्रतिष्ठा होती है, डिग्निटी यानी रिस्पेक्ट, प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज, वो सब उनको पहली बार मिल रहा था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन हिज स्पीच नेल्सन मंडेला प्रॉमिस्ड एंड प्लेस्ड, उन्होंने वचन दिया, प्रार्थना की, फ्रीडम टू ऑल पीपल फ्रॉम कंटिन्यूस बॉन्डेज ऑफ स्लेवरी। अब कोई भी आदमी गुलामगिरी में नहीं रहेगा। बॉन्डेज यानी बंधन। तो जो हमारे यहाँ जो हमेशा ये गुलामगिरी चल रही थी, अब इसे हम छोड़ दिया है, इससे हम मुक्त हो गए हैं। स्लेवरी, गुलामगिरी, बाद में पावर्टी, पावर्टी यानी गरीबी, दारिद्र्यता, सफरिंग्स, हाल अपेष्टा, जेंडर, जेंडर यानी जो मेल फीमेल, पुरुष स्त्री, इसके आधार पे जो डिफरेंस होता है उसको जेंडर डिफरेंसेस बोलते हैं। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्तर पे जो डिस्क्रिमिनेशन रहता है, ये हम सभी चीज़ों से मुक्त हो गए हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है डिफरेंस, भेदभाव। तो गुलामगिरी हो, गरीबी हो, हाल अपेष्टा हो, स्त्री पुरुष हो, या कोई भी बाकी के सामाजिक आर्थिक भेदभाव हो, इससे सब हम मुक्त हो गए हैं। नाउ वी ऑल पीपल आर इक्वल हियर। एंड ही फर्दर प्रॉमिस्ड हिज कंट्रीमेन दैट देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन फ्रॉम अनदर। वन फ्रॉम अनदर मतलब एक दूसरे का। तो मेरे देशवासियों, अभी इसके आगे किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन यानी कि लूट हर एक दूसरे से नहीं होगा। कोई ऊंचा आदमी या कोई रीच आदमी या कोई समाज में खुद को बड़ा सुपर पावर समझता है और वो दूसरे का लूट करेगा, ये कभी ऐसा नहीं होगा, और इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ऐसा नेल्सन मंडेला ने एश्योर किया। एश्योर का मतलब है ASSURE। एश्योर का मतलब है एक लोगों को विश्वास दिलाना।